हर गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय जिनेन्द्र. ઓલ આર વેલકમ. આપણી સાથે અત્યારના ડોક્ટર પ્રકાશભાઈ જોશી જોઈન્ટ થઈ ગયા છે. વેલકમ છે ડોક્ટર સાહેબ તમારું. આપણે ત્યાં મારા ખ્યાલથી થર્ડ ટાઈમ આવી રહ્યા છે ડોક્ટર સાહેબ. ડોક્ટર સાહેબ આયુર્વેદિકમાં ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે અને છેલ્લા 40 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. આજે હેર ફોલ ઉપર, સ્કિન ડિસીઝ ઉપર, આર્થરાઇટિસ ઉપર અને આ ચોમાસામાં આપણે આપણા રોગોથી કેવી રીતે રક્ષણ કરવાનું એને માટેનું આપણે આજે આખું વેબિનાર રાખેલું છે અને ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે બધા એન્જોય કરીશું. ક્વેશ્ચન આન્સર પણ લેવામાં આવશે. મારી સાથે કોસ્ટમાં છે અત્યારના ભરતભાઈ જીમુલિયા, બીનાબેન અહીંયા, પ્રીતિબેન રાજ, સરોજબેન શાહ અને હર્ષાબેન દાવડા. તો બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. હું માઇક હેન્ડઓવર કરું છું ડોક્ટર પ્રકાશભાઈ જોશીને અને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ એમના મિસિસ પ્રતિમાબેન જોશીને કે થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન આપીને પછી આજનો કાર્યક્રમ આપણે ચાલુ કરીએ. તમે ત્યાંથી તમારું માઇક ઓપન કરી શકશો ડોક્ટર સાહેબ. તમે અત્યારના કોસ્ટ બનાવેલા છે તમને, તો ત્યાંથી તમે તમારું માઇક ઓપન કરજો અને તમને હું માઇક હેન્ડ ઓવર કરું છું. ત્યાંથી તમે તમારી રીતે અનમ્યુટ થઈ જજો. ત્યાંથી તમે અનમ્યુટ થઈ જાઓ. હા પ્રતિમાબેન, ત્યાંથી તમે અનમ્યુટ થાઓ. યસ, થઈ ગયા. હા, અનમ્યુટ થઈ ગઈ. થઈ ગઈ. બસ વેલકમ છે તમારું ને જોશી સાહેબનું. તમે થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો, થોડુંક આજનો કાર્યક્રમ આપણે આગળ વધારીએ છીએ તો થોડુંક તમે આજના કાર્યક્રમ વિશે પણ બધાને જણાવો. ક્વેશ્ચન આન્સર પણ આપણે લઈશું અને સુંદર રીતે આપણે બધાની ક્વેરી સોલ્વ કરીશું. ઓકે, પ્લીઝ ગો હેડ. ઓકે, નમસ્તે એવરીબડી. અનમ્યુટ કરું ને? હા, નિમિષભાઈ, સૌથી પહેલા તો નિમિષભાઈ નો બહુ બહુ આભાર કે હંમેશા મોકો આપે છે અને વિચારો શેર કરી શકાય તમારા બધા સાથે, જ્ઞાનનો સદુપયોગ કરી શકાય એ મોકો નિમિષભાઈ આપે છે, એટલે એમનો બહુ બહુ ધન્યવાદ. હું ડોક્ટર પ્રકાશ જોશીનું આજે ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. એ પોતે ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે અને એમણે 40 વર્ષની પ્રેક્ટિસ કરી, 40 વર્ષનો અનુભવ છે અને આયુર્વેદમાં એમણે વર્લ્ડ ઓવર રિસર્ચ પેપર આપેલા છે અને સતત એમના વેબિનાર ચાલે છે. એટલે આજે એમનો સબ્જેક્ટ છે કે હેરફોલ અને સ્કિન ડિસઓર્ડર અને આર્થરાઇટિસ કે આ શા માટે થાય છે. આજે આપણે જોઈએ છે કે કેટલા એક જ લેનમાં, અમારી જ લેનમાં જુઓ તો એટલા બધા બ્યુટી પાર્લર છે. આજે હેર અને સ્કિન માટે લોકો એટલા પૈસા ખર્ચી રહ્યા છે, છતાં પણ લોકોને એટલા બેનિફિટ નથી. અમારી પાસે રીચ ફિલ્ડમાં હેર ઇમ્પ્લાન્ટ કરીને 2-5 લાખ ખર્ચીને આવે છે લોકો, છતાં એમના વાળ પાછા ઉતરી જાય છે. તો ડોક્ટર સાહેબને કહ્યું કે આના વિશે લોકોને નોલેજ આપવું જોઈએ કે હેરફોલ નું રિયલ રીઝન ક્યાં છે અને એની ટ્રીટમેન્ટ કઈ રીતે થઈ શકે છે. એટલે એમણે આજનો ટોપિક પસંદ કર્યો છે. તો આજે ઓલરેડી 5 મિનિટ આપણે લેટ થઈ ગયા, તો હવે હું ડોક્ટર સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ એમની ચર્ચા આગળ વધારે. નમસ્તે એવરીવન. પ્રણામ નિમેશભાઈ અને તમારા કો હોસ્ટ અને બધા મેમ્બરોને. થેન્ક યુ. વેલકમ છે ડોક્ટર સાહેબ તમારું. હાજી, તો આજનો આપણો ટોપિક તમે જેમ સાંભળ્યો તેવી રીતે હેરફોલ, સ્કિન ડિસઓર્ડર્સ અને આર્થરાઇટિસ ઉપર છે. તો આજના જમાનામાં હેરફોલ હેઝ બીન ધ મોસ્ટ કોમનેસ્ટ એન્ડ pertinent problem for most of the people all over the world. And અચ્છા, હવે હું હિન્દીમાં બોલવાની કોશિશ કરું છું જેથી જે લોકો हिंदी भाषी એ લોકોને પણ समझ में आवे. तो हेयरफॉल के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हर 5वें व्यक्ति को हेयर लॉस का प्रॉब्लम दिखाई देता है. तो हेयरफॉल के क्या कारण है ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास मैं 40 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आ चुके हैं मेरे पास कि जिन लोगों ने
टीवी पर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट दिखती है या यूट्यूब पर जितने भी उपाय दिखाई देते हैं और भी कई घरेलू इलाज होते हैं और फिर कई प्रकार के हेयर ऑयल होते हैं, कई प्रकार के शैम्पूज होते हैं, ये सब यूज़ कर कर के आते हैं। तो वो लोग का यही प्रश्न मुझे होता है कि डॉक्टर साहब ये इतना सारा क्लेम ये लोग करते हैं, ये सब बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो फिर उनके रिज़ल्ट क्यों नहीं आते हैं? तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझने की हम कोशिश करेंगे, तो सचमुच में समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ द कॉज़। तो हेयर फॉल के जो कारण होते हैं उसमें एक विशिष्ट कारण होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पसीना होना। अब ये पसीना होना मतलब कि एक प्रकार का मॉइस्चर बनना। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि कहीं भी मॉइस्चर ज़रूरत से ज़्यादा बना रहता है, तो वहाँ पर कीटाणु पनपते हैं, वायरस पनपता है और जैसे कि आजकल हम लोग ने ये वायरल एपिडेमिक देखा, तो उसमें हर जगह पे बताया गया कि हाइजीनिक रहो, हर जगह पे हैंड ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ अनहाइजीनिक होती है, तो वहाँ पर कीटाणु पनपते हैं, इंसेक्ट्स, माइक्रोबायम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से डेवलप होते हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर लोगों को जो सिर में पसीना होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी पैदा होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कई बार डैंड्रफ पैदा करते हैं और कभी-कभी बाल झड़ने लगते हैं और कभी-कभी बाल रफ हो जाते हैं। और इस तरह से विभिन्न प्रकार से जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन होता है, वो तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इंटरनल इन्फेक्शन या इंटरनल कॉज़ेटिव फैक्टर की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। जैसे कि एक लड़की मेरे पास आई थी, तो उसको 2 महीने पहले से हेयर फॉल चालू हो गया था। तो मैंने और उसने ये भी बोला कि मैंने मार्केट में अवेलेबल जितने भी हेयर ऑयल थे, सब यूज़ कर चुकी हूँ। इसलिए अब मुझे हेयर ऑयल मत दीजिएगा। लेकिन इसका कारण क्या है ये आप मुझे बताइए। तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली, तो मुझे समझ में आया कि 2 महीने पहले उसको लूज़ मोशंस हो गए थे। तो वो लूज़ मोशंस को एलोपैथिक दवाइयों के द्वारा ठीक कर दिया गया, ऐसा वो लोग समझ रहे थे। लेकिन जब से वो सप्रेस हो गया था वो इन्फेक्शन, तब से वो उसका हेयर फॉल चालू हो गया था। तो मैंने ये डायग्नोसिस किया कि सप्रेस्ड इन्फेक्शन हैज़ कॉज्ड हेयर फॉल। तो मैंने वो सप्रेस्ड इन्फेक्शन को दूर करने की दवाइयाँ दी, तो उन दवाइयों से धीरे-धीरे करके उसके मोशंस थोड़े से और चालू हुए, लेकिन जैसे-जैसे मोशन चालू हुए, कि उसका हेयर फॉल ठीक हो गया। तो इस तरह से कई बार इंटरनल इन्फेक्शन भी होता है, कभी-कभी हमारे रॉन्ग डाइट की वजह से इम्प्यूरिटीज़ भी जमा हो जाती है, कभी-कभी हमारे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होने से वेस्ट मैटर ज़्यादा बनता है। अब ये वेस्ट मैटर ज़्यादा बनने से क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी अंतड़ियाँ छोटी और बड़ी अंतड़ी होती है। तो छोटा इंटेस्टाइन होता है वो 27 फीट का होता है और बड़ा इंटेस्टाइन होता है जिसको हम कोलन भी बोलते हैं, तो वो 7 फीट का होता है। तो टोटली मिलाकर ये 34 फीट के होते हैं। तो मान लो कि रोज़ सिर्फ 5% 5% वेस्ट मैटर क्रिएट होता हो और वो अंदर पड़ा रहता हो, जो कि ज़्यादातर पड़ा ही रहता है क्योंकि 34 फीट में से पूरा का पूरा वेस्ट मैटर नहीं निकल पाता। तो ये धीरे-धीरे करके 5% से 1 महीने में देखो तो 5 इंटू 30 तो कितना होता है? तो इस तरह से धीरे-धीरे करके साल भर में या कुछ महीनों में देखो तो मल्टीप्लाइड वेस्ट मैटर जमा हो जाता है। अब आप सबको मालूम होगा कि जहाँ पर वेस्ट मैटर होता है वहाँ पर क्या होता है कि सड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और डीके प्रोसेस। तो कोई भी चीज़ जब डीके होती है तो वो कैसे होती है? तो कि बैक्टीरिया के द्वारा। अब ये बैक्टीरिया जब डीके करते हैं तो मतलब फूड का जो इंडाइजेशन होता है उससे जो वेस्ट मैटर बनता है उससे ये सब होता है।
तो ये बैक्टीरिया धीरे धीरे करके फिर इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो दिस वे द impurities आर गेटिंग permeated इनटू ब्लड सर्कुलेशन। और ये जो इम्प्यूरिटीज धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा घूमने लगती है, और जहाँ पर भी ये इम्प्यूरिटीज सेट हो जाती है या सेटल हो जाती है, वहाँ पर का डिजीज होता है। ये हेयर फॉल तो तब होता है जब वो इम्प्यूरिटीज स्काल्प के नज़दीक जाकर वहाँ पर हेयर फॉलिकल में जाके सेटल हो जाती है। तो हेयर फॉलिकल में जाकर ये इम्प्यूरिटीज हो या इन्फेक्शन हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो हेयर फॉलिकल को काटने लगते हैं और काट काट के उसको दूर कर देते हैं। तो मतलब कि एक एक हेयर लॉस होने लगता है। तो ऐसे काफ़ी लेडीज़ मेरे पास आ चुकी है, इनफैक्ट जेंट्स भी आते हैं लेकिन जेंट्स के इतने हेयर फॉल नहीं होते जितने लेडीज़ के होते हैं। तो लेडीज़ लोग ये भी बोलती है कि उनके रोज़ 50-100 हेयर फॉल होते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि रूम में जहाँ-जहाँ जो हर जगह पे हेयर फॉल होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि इतना स्टबर्न हेयर फॉल ये सब क्यों है? तो उसका मेन कारण यही होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, उसको दूर करने की दवाई सिर्फ़ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी लेनी पड़ती है। तो जो लोग ये हेयर ऑयल और शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, उनको कभी-कभी टेम्परेरी फ़ायदा होता है, फिर वापस होने लगता है। अभी एक पेशेंट ऐसी भी आई थी कि जिसने ट्राइकोलॉजिस्ट के द्वारा हेयर इम्प्लांट करवाए थे। हाँ, क्योंकि वो बाल्ड हो चुकी थी, पूरा टकलू हो गया था। So being a lady, to be a bald is a very difficult situation for the society and in the society for the person. तो ये बाल्डनेस की वजह से उसने ट्राइकोलॉजिस्ट की सलाह ली और उसने फिर हेयर इम्प्लांट करके दिए। तो कई लाख रुपए खर्च करके हेयर इम्प्लांट हुए थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे करके फिर से सारे हेयर फॉल हो गए। तो शी वाज़ वेरी वेरी अपसेट कि आफ्टर spending so many lakhs of rupees, how come the implanted hairs have come out? तो वो लेडी आउट ऑफ बॉम्बे से मेरे पास आई थी, किसी के रेफरेंस की वजह से। तो फिर उसने मुझे जब ये सब सुनाया तो उसकी हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री के मुताबिक जब मैंने उनको दवाइयाँ दी, खाने की भी दवाई दी और विभिन्न प्रकार के हेयर ऑयल कंबाइन करके उनको दिया। तो हर महीने में उनका इम्प्रूवमेंट चालू हो गया और धीरे-धीरे करके 6 महीने में उनके बाल काफ़ी हद तक ग्रो हो गए थे, और फिर वो अभी तो काफ़ी घने बाल उनके आ चुके हैं। तो इस तरह से चाहे किसी भी प्रकार का कारण हो, तो हेयर फॉल को हम ठीक कर सकते हैं। अभी कभी-कभी कोई-कोई लोग एक फ़िल्म स्टार थी, उसका फ़ोन आया था मेरे ऊपर कि उनको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हेयर थिनिंग क्यों होता है? तो हेयर थिनिंग होने होने के कारणों में एक तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब लैक ऑफ न्यूट्रिशन के भी कई कारण हैं कि कभी-कभी हम लोग बराबर खाना नहीं खाते, और खाते भी हैं तो समय पे नहीं खाते हैं। और दूसरा कि हम लोग रॉन्ग फूड खाते हैं, और कभी-कभी हमारा मेटाबॉलिज़्म इम्पेयर्ड होता है। और मेटाबॉलिज़्म इम्पेयर होने से क्या होता है कि कुछ वेस्ट मैटर ज़्यादा बनता है, मतलब कि कुछ चीज़ें ज़्यादा बनती है, कुछ चीज़ें कम बनती हैं। तो इस तरह से कभी-कभी हेयर थिन हो जाते हैं, और हेयर थिन होने की वजह से फिर धीरे-धीरे झड़ने लगते हैं। और तीसरा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हेयर रफ हो जाते हैं। तो रफनेस होती है हेयर की, तो उसकी वजह भी वायु का प्रकोप होता है। और कभी-कभी पित्त प्रकोप से भी जैसे पहले बोला हेयर थिनिंग, तो हेयर थिनिंग में पित्त प्रकोप भी होता है। अब ये हेयर थिनिंग में पित्त प्रकोप होने का कारण क्या है? क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा लेते हैं, और कई लोग नॉन-वेज भी ज़्यादा खाते हैं। तो ऑल इंडिया का एक सर्वे किया गया था, तो उसके मुताबिक देखने जाए तो आजकल की सोसाइटी में 70% पॉपुलेशन एसिडिक हो चुका है। तो जब एसिडिक हो जाता है ब्लड हमारा, तो
हेयर लॉस तो होता ही है, और भी कई प्रकार की डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से हेयर थिन भी होने लगते हैं, और कभी-कभी हेयर ग्रे होके धीरे-धीरे व्हाइट भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी कई प्रकार के कंस्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम जो भी फूड खाएँ, ज़्यादा पकाए नहीं, और उसको मध्यम आँच पे, मतलब गैस की मध्यम आँच पे ही पकाना चाहिए। नहीं तो आजकल तो लोग तामसिक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो लोग ज़्यादा जला देते हैं और ज़्यादा ऑयली होते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत तकलीफ होती है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनकी तो वो लोग शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं, या उनको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है, तो वो लोग बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं। तो अब ये बाहर जो फूड मिलता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि एक ही ऑयल में बार-बार फूड पकाते हैं। जब एक ही ऑयल में बार-बार फूड पकाया जाता है, तो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो ये टॉक्सिसिटी धीरे-धीरे करके बॉडी में जमा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, और उसकी वजह से और भी कई रोग होते हैं। तो अभी हम लोग ने हेयर फॉल के लिए विभिन्न कारणों की मीमांसा की। अब हम स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आजकल बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें रॉन्ग डाइट, रॉन्ग फूड, रॉन्ग लाइफ़स्टाइल तो होता ही है। साथ में आजकल ग्लोबल वार्मिंग का भी इफ़ेक्ट बॉडी पर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। तो स्किन डिसऑर्डर्स में कॉमनेस्ट क्या है? क्योंकि एक्नेज़ है, रोज़ासिया होता है। रोज़ासिया यानी क्या? क्योंकि गाल जैसे रोज़ जैसे लाल होता है ना, उस तरह से लाल-लाल भी हो जाते हैं। और कई बार लोग क्या करते हैं कि बाहर के जो क्रीम्स वग़ैरह होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो जिन लोगों की प्रकृति के अनुकूल ये सब बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, तो उनको उसकी एडवर्स इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि एक लड़की आई थी मेरे पास, वो हार्डली 20-22 साल की होगी। तो उसने कहीं से वॉलनट स्क्रब यूज़ किया था, तो उसकी प्रकृति पित्त प्रकृति थी। अभी आजकल लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी प्रकृति क्या है, उनको कौन से प्रोडक्ट्स अनुकूल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी यूज़ करता है, और फिर किसी-किसी को उसकी एडवर्स इफ़ेक्ट आती है। तो ये लड़की पित्त प्रकृति के होने से वॉलनट उसको गरम पड़े, तो वॉलनट गरम पड़ने से उसकी स्किन, चेहरे की स्किन जल गई, तो जलने के बाद काली हो गई, और वो इतनी डीप इफ़ेक्ट थी कि जब वो ऊपर का सरफेस का स्किन निकल गया, तो व्हाइट भी हो था। तो जब मेरे पास आई तो वो मास्क पहन के आई थी, ताकि कोई देख ना सके। तो इस तरह से जो भी बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको हमेशा सूट हो। एक्चुअली स्पीकिंग आयुर्वेद का ये वरदान है हमारे इंडियन लोगों के लिए, जिसका हम लोग पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो वेस्टर्न दृष्टिकोण हो गया है, कि जो भी हम टीवी पे वगैरह पे देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब हमारे अनुकूल होगा, ये सब बेस्ट होगा, तो हम लोग यूज़ करते हैं और फिर हमें तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से करने से जो भी तकलीफ़ होती है उसका निवारण सिर्फ़ आयुर्वेद ही दे सकता है। क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है, सिर्फ़ आयुर्वेद के पास ही है कि किसकी कौन-सी प्रकृति है, उसको कौन से मेडिसिन सूट होगी, कौन-सी नहीं होगी, कौन से फूड सूट होंगे, कौन से नहीं होंगे। ये प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद मालूम पड़ता है, और उसके बाद प्रॉपर डाइट सजेस्ट किए जाते हैं, और प्रॉपर मेडिसिन्स भी दी जाती है, उसके बाद सब ठीक होते हैं। और इसके अलावा जो एक्ने होता है, तो एक्ने भी एक पर्टिनेंट प्रॉब्लम है, जो कि वर्ल्ड ओवर के लोग मेरे पास फ़ोन करके वीडियो कॉलिंग से भी बात करते हैं। तो एक्ने भी एक प्रकार के बैक्टीरिया से भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होते हैं। तो आजकल लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी इस प्रकार से एक्नेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है कि रॉन्ग फूड, रॉन्ग डाइट। तो इस तरह से एक्नेस भी कई लोगों को ज़िंदगी भर सताते हैं, और कईयों को ठीक भी नहीं होते हैं। और ख़ास करके लेडीज़ लोगों में
जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है या मंथली पीरियड आता है, उस वक्त भी एक्ने वगैरह चालू हो जाते हैं। तो इसका भी हमें प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। तो जो इरेगुलर मेंसेस होते हैं या हार्मोनल हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके अलावा कईयों को पिंपल्स होते हैं और बॉयल्स होते हैं और चेहरा काला पड़ जाता है और अभी कुछ पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनको पूरी बॉडी डार्क हो गई हो। तो मेरे पास एक कई लेडीज़ ऐसी आती है कि जो लोग पूरी बॉडी डार्क हो गई होती है, तो उसके कारणों में कभी-कभी केमिकल बेस्ड मेडिसिन्स भी मालूम पड़ी है। और रॉन्ग फूड तो होता ही है, लेकिन कई बार केमिकल बेस्ड मेडिसिन भी उसमें कारणभूत होती है। तो एक लड़की ऐसी आई थी कि जिसने कुछ मेडिकेशंस करवाए थे केमिकल बेस्ड, तो उसकी वजह से वो कोल ब्लैक हो गई थी। कोल ब्लैक यानी कि कोयले के बराबर काली, जबकि उसका ओरिजिनल कलर था एकदम फेयर कलर का था। और जैसे कि हम बोलते हैं कि कॉटन का व्हाइट होता है ना, उस तरह के वो व्हाइट थी। तो मैंने जब उसका पॉज़िटिव फैक्टर समझा, तो फिर अकॉर्डिंगली मैंने दवाइयाँ दी और जो केमिकल मेडिसिन थी, उसका स्पेसिफिक एंटीडोट बना के दिया। तो धीरे-धीरे करके वो इतनी फेयर हो गई कि उसके घर वाले भी सब मेरे पेशेंट बन गए। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के कारणों से स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। वे स्किन डिसऑर्डर्स में कई बार पूरी बॉडी में इचिंग होता है, उसका भी इलाज कई बार वो लोग बड़े-बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर करके आते हैं। तो ये लोग ठीक नहीं होते, उसका कारण ये है कि वेस्टर्न मेडिसिन में उसका रूट कॉज़ कई बार समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वो लोग आयुर्वेद में आते हैं और आयुर्वेद में आने के बाद जो रूट कॉज़ मालूम पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली जब हम दवाई देते हैं, तो उनका पूरी बॉडी का इरिटेशन, इचिंग, बॉयल्स, रैशेज़ सब ठीक हो जाते हैं। कभी-कभी चकत्ते पड़ जाते हैं और हाइव्स हो जाते हैं। तो हाइव्स होना यानी क्या कि जिसको हम शीत-पित्त बोलते हैं, यानी कि अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। तो ये बहुत खुजली आती है और पूरी बॉडी में इतनी खुजली आती है कि कोई सहन नहीं कर सकता। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी होता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन भी जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो आयुर्वेद के दृष्टि से 100% और परमानेंटली हमने ठीक किए हैं। इसके अलावा कई बार ये देखा जाता है कि आजकल सोरियासिस काफ़ी चल रहा है। तो पॉपुलेशन का काफ़ी परसेंटेज ऐसा है कि जिनको सोरियासिस हो रहा है। अब ये सोरियासिस किस कारणों से होता है? क्योंकि आजकल जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं इनफैक्ट डिनर के ऊपर आइसक्रीम खाते हैं। तो जो ये ज़्यादा मॉइस्चर होना, ज़्यादा ठंडक होना और ज़्यादा एसी केबिन में बैठना, यस, आजकल सुबह से शाम तक लोग एसी केबिन में बैठते हैं और बच्चे लोग भी एसी क्लासरूम में बैठते हैं, जो कि नेचुरल लाइफ के खिलाफ है। हमें हमेशा नेचुरल टेम्परेचर में रहना चाहिए और जब भी हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तब एयर कंडीशन का उपयोग हो तो बराबर है। अन्यथा बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से कफज सिंड्रोम वाले डिज़ीज़ होते हैं। तो उसमें कफल सिंड्रोम में कई बार वायरस भी पैदा हो जाते हैं और कई प्रकार के बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं, जो अभी आजकल सब लोग को मालूम पड़ गया है। तो जब लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या मान लो कि कोई ज़्यादा फ्रूट खाता है, तो उसमें केला है, चीकू है, ऐसे कोल्ड फ्रूट्स है, सीताफल है या फिर ऑरेंजेस है। ये सब लिमिट में लो तब तक बहुत फ़ायदा करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो डिसीज़ेज़ करते हैं। जैसे कि एक केस आया था मेरे पास, कि हार्डली वो 25 साल की लड़की होगी और उसका वज़न नहीं बढ़ता था। तो उसके फ़ादर ने उसको दिन का 7-8 केला खाना चालू करवाया था। तो उसकी वजह से उसको वज़न तो बढ़ गया था। लेकिन धीरे-धीरे करके वो केले की वजह से जो म्यूकस पैदा होता है, जो चिकनाहट पैदा होती है, वो ब्लड में सेटल हो गई।
अब ब्लड में सेटल होने से खुजली आने लगी, और खुजली आने के बाद उसको जैसे जैसे खुजलाने लगी तो उसको स्केल्स निकलने लगे। और आप लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि कोई भी स्किन डिजीज होता है तो उसको कम से कम 7-8 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी डिजीज होता है तो वो धीरे-धीरे कोई भी वेस्ट मैटर या इन्फेक्शन एक्यूमुलेट होता है, संचय होता है उसका, तो धीरे-धीरे करके वो मैनिफेस्ट होता है या प्रदर्शित होता है। और स्पेशली जब स्किन डिजीज होता है, तो आप सबको शायद मालूम होगा कि देयर आर 7 लेयर्स ऑफ द स्किन। तो जो 7 लेयर्स को धीरे-धीरे करके परमिएट करके स्प्रेड होते-होते जब बाहर आता है 7th लेयर में, तो तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि ये हमें ये स्किन डिजीज हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अभी-अभी हुआ है। इसलिए लोग कभी-कभी इम्पेशेंट होते हैं कि ये अभी-अभी हुआ है तो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जल्दी तब ठीक होता है कि जब वो तुरंत आते हैं हमारे पास। लेकिन आयुर्वेद में लोग तब आते हैं कि जब वो कोई भी डिज़ीज़ क्रॉनिक हो जाता है। तो क्रॉनिक होने के बाद भी यदि कुछ महीनों में भी लोग ठीक हो जाते हैं तो भी वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि अदरवाइज़ वेस्टर्न मेडिसिन ले लेके वो लोग थक गए होते हैं। कई सालों से वो लोग सफ़र होते हैं, और फिर भी जब आयुर्वेद में आना पड़ता है, तो उनको लगता है कि ये तो हमारे लिए एक वरदान रूप है। तो तब जाके धीरे-धीरे करके लोगों को समझ में आता है कि व्हाट इज़ आयुर्वेदा एंड हाउ आयुर्वेदा इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू द ह्यूमन काइंड। अब हम इसके बाद आर्थराइटिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थराइटिस को आयुर्वेद में संधिवात बोलते हैं। अब ये संधिवात मतलब क्या? कि संधियों में वायु का प्रवेश होना। तो ये वायु कहाँ से प्रविष्ट होता है और कौन-सा वायु कैसे होता है? क्योंकि हम पहले के एक लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु होते हैं, जैसे कि प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। अब जब हम कुछ भी खाना खाते हैं और उसका इंडाइजेशन होता है कभी-कभी, और कभी-कभी एसिडिटी भी होती है। तो एसिडिटी से भी कभी-कभी वायु पैदा होता है। जैसे कि हम कोई भी पानी या लिक्विड गरम करते हैं या कोई भी पदार्थ भी गरम करते हैं, तो उसमें से भाप भाप पैदा होती है, यानी कि स्टीम पैदा होती है। तो ये स्टीम के रूप में हमारी बॉडी में वायु के रूप में यहाँ-वहाँ घूमने लगती है। और उसकी वजह से वो कभी-कभी जहाँ पर भी स्पेस मिलती है, जैसे कि जॉइंट्स में स्पेस होती है, तो वहाँ पर चला जाता है वो ये वायु, और फिर वहाँ पर पेन करने लगता है। तो लोगों को लगता है कि ये पेन किलर से ठीक हो जाएगा। तो वो लोग शुरुआत में पेन किलर लेते हैं, टेम्परेरीली ठीक होता है, फिर वापस होता है। फिर कई बार वो लोग को डॉक्टर्स स्टेरॉइड देते हैं, तो स्टेरॉइड से भी लगता है कि चलो कुछ 1, 2, 4 महीने के लिए ठीक हो गया। फिर लेकिन वापस डबल अटैक आता है, और डबल अटैक आने का मतलब ये भी होता है कि सिर्फ़ नी पेन नहीं होता है, धीरे-धीरे करके सारे जॉइंट्स पकड़ने लगते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों, हज़ारों लोग आ गए हैं कि जिनको शोल्डर पेन होता है, नेक पेन होता है, फिर हिप पेन होता है, और नी पेन होता है, एंकल पेन होता है। इनफैक्ट पूरा मस्कुलोस्केलेटल जो बॉडी है, वो पूरा पेन होता है, और कइयों को चेस्ट पेन भी होता है। तो ये समझना पड़ता है कि एग्ज़ैक्टली किस कारण से ये वायु का एग्रेवेशन हुआ है, वायु क्यों बढ़ा है। वायु क्रिएट करने के मामले में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडाइजेशन ही होता है, और इंडाइजेशन का कारण होता है हमारा फॉल्टी लाइफ़स्टाइल और फॉल्टी फूड। और उसके अलावा जब इंडाइजेशन से इन्फेक्शन होता है, तो उससे भी हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन जैसे वायु पैदा होते हैं, और वो धीरे-धीरे करके जॉइंट्स में चले जाते हैं, और उस तरह से हमें विभिन्न प्रकार के जॉइंट पेन्स होते हैं। तो मुझे अभी एक केस याद आ रहा है कि भले मैं यहाँ गोरेगाँव में हूँ, लेकिन दादर से एक लड़की मेरे पास आ रही थी कि जिसका पूरा बॉडी स्टिफ हो गया था, और वो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तीनों ले चुकी थी, और करीब 5 साल से उसको ये डिज़ीज़ था,
और वो इतना स्लो स्लो चल पा रही थी कि वो बोलती थी कि वो जब रास्ता क्रॉस करने जाती थी तो उस वक्त अचानक उसका पैर रुक जाता था और वो एक्सीडेंट से कई बार बची थी। तो कई बार ऐसे लोगों की ये हिस्ट्री सुन के हमें दया भी आती है कि ये लोग बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। तो शुरू में वो लड़की मेरे पास टैक्सी में आती थी, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा अच्छा होने लगा, तो बस में आने लगी और उसके बाद और भी अच्छा हो गया, तो ट्रेन में आने लगी थी। और मज़े की बात ये है कि ये लड़की उसको इतनी बड़ी बीमारी थी, मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट और सारे जॉइंट्स का पेन था, उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। और जब मेरे पास आई तब वो करीब 32 इयर्स के आसपास की होगी। तो लेकिन मेरी दवाइयों से जब वो ठीक हो गए, तो उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई और उसके बाद उसने उसकी एंगेजमेंट भी हो गई और उसने फिर मुझे उसके वेडिंग में इनवाइट भी किया था। इस तरह से उसका फिर मैरिज भी हो गया था। तो इस तरह से आर्थराइटिस का निदान हम करते हैं और उसकी चिकित्सा भी करते हैं। और आर्थराइटिस जब और पुराना हो जाता है, मतलब कि संधिवात, तो उसमें सूजन आने लगती है। ये सूजन कैसे आती है? तो कि हम जो भी खाना खाते हैं, उसमें से जो भी वेस्ट मैटर बनता है, उसमें से म्यूकस भी बनता है। म्यूकस यानी कि कफ जैसा सेमी लिक्विड। तो म्यूकस जब जॉइंट्स में या मसल्स में चला जाता है, तो वो सूजन पैदा करता है, स्वेलिंग पैदा करता है। तो ये स्वेलिंग होने से फिर उसको बोलते हैं रूमेटिज़्म। और ये रूमेटिज़्म जब बढ़ जाता है, तो धीरे-धीरे करके जॉइंट्स में नॉट्स यानी कि गाँठें पड़ने लगती हैं और ये गाँठें पड़ने से फिर उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं आजकल के भाषा में। और इस प्रकार से कई लोग मेरे पास आते हैं कि जिनको 8-8, 10-10 साल से हाथ-पैर कर्व्ड होते हैं, मतलब कि मुड़े हुए होते हैं। उनकी उँगलियाँ भी मुड़ी हुई होती है। ऐसे कई लोगों को हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से निदान करके ठीक करते हैं। ऐसे मैं ज़रूर से ज़्यादा बोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसे इतने हज़ारों लोग ठीक हो गए हैं कि मैं उसकी गिनती भी नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और भी डिज़ीज़ होता है जो वेस्ट मैटर पैदा होता है उससे, कि आजकल कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जिनको फैट डिपॉज़िट होती है। फैट डिपॉज़िट कभी-कभी कोरोनरी आर्टरी में भी होती है, कभी-कभी ब्रेन में भी होती है और कभी-कभी स्किन में भी होती है। तो उससे भी मस्कुलोस्केलेटल पेन्स होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो मैटर होते हैं, उसके द्वारा जो भी रोग होते हैं, उसमें ये भी है कि फैट नूडल्स होते हैं और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आयुर्वेद के दृष्टि से हम ये भी ठीक कर सके हैं। तो अभी जहाँ तक मेरी समझ है, अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो हम अभी क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। બહુ સરસ પ્રકાશભાઈ, સરસ રીતે તમે સમજાવ્યું છે અને કોને શું તકલીફ હોય ત્યારે આપણને વાળ ખરવાની તકલીફ થાય અને ડાયટમાં પણ કઈ ચેન્જ થઈ જાય તો આવી રીતે તકલીફ થઈ શકે, એના માટે પણ તમે માહિતી આપી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને હવે કોઈને પણ ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરશો. તો આપણે એ ક્વેશ્ચનના આન્સર આપણે ડોક્ટર સાહેબ પાસેથી લઈ લઈએ. હેમલતાબેન સુરતી. હા, હેમલતાબેન, તમે અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ મોકલાવી છે. હા હેમલતાબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. થેન્ક યુ વેરી મચ ડોક્ટર, ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી અને ખૂબ જ જાણવા જેવી ઉપયોગી માહિતી આપી છે. અને મારે એ પૂછવું છે કે ઘણીવાર માથામાં ખજવાળ આવતી હોય છે ક્યારેક ક્યારેક, તો એનું શું કારણ અને એની રેમેડી શું? હા, એકચ્યુઅલી માથામાં જે ખુજલી આવે છે, હું હિન્દીમાં જવાબ આપું
कि सिर में जो खुजली आती है उसका एक वजह है मॉइस्चर ज्यादा होना, यानी कि पसीना ज्यादा होना। पसीना, तो हाँ। पसीने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और उसकी वजह से भी खुजली आई है। और दूसरा काम होता है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ ये होता है तो भी खुजली आती है। तो उसकी वजह से पहले तो आपको डाइट में ये जानना पड़ेगा कि आपका डाइट क्या है और आपको कौन से डाइट से और क्या होता है। तो ये कोई कंसल्टेशन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार के फूड से क्या होता है और ओके, उसका इलाज क्या है। ओके। मैंने परसेवा बोलिए, मुझे और किसी बहुत को? होता है, परसेवा बहुत होता है बालों में। હા હા એમણે કહ્યું કે તમારે એમને એક વખત કન્સલ્ટ કરો તો હા. તમને ખબર પડશે. બરાબર. હા, હવે છે દિલીપભાઈ ઓકે, મહેતા. થેન્ક યુ વેરી મચ ડોક્ટર. દિલીપભાઈ મહેતા, તમારે અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ મોકલાવી છે, તમે અનમ્યુટ થશો ત્યાંથી. ओके, जय श्री कृष्ण बताओ ने। જય શ્રી કૃષ્ણ. डॉक्टर सर नमस्कार। હા हेलो। બોલો દિલીપભાઈ. हाँ, एक 10 વર્ષ પહેલા મારો એક નાનો સો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો હતો સ્કૂટરથી. મેં મારા બે આંગળા છે લેફ્ટ હેન્ડના તે ફ્રેક્ચર થઈ ગયા હતા ને એમાં એક તાર નાખ્યો હતો હડ્ડી જોડવા માટે એમને. તો અત્યારે એમાં ખજવાળ બહુ આવે છે, જેવું વરસાદ હોય યા ઠંડી હોય. તો એના માટે શું કરું? આમ ખજવાળીને આમ થોડું શું લાલ જેવું થઈ જાય છે. हिंदी में कहूँ? હા હિન્દીમાં બોલો. अच्छा, एक मिनट, हाँ बोल रहा। હા તમે તમે હિન્દીમાં બોલો એટલે हाँ हाँ समझे। सर नमस्कार जी। डॉक्टर सर नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? પ્રકાશભાઈ તમને અવાજ આવે છે? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, હા આવે છે. एक हाँ 10 साल पहले स्कूटर से मेरा हाँ एक्सीडेंट हो अभी गया हो था। जाए, अभी हो जाए। हाँ जी, 10 साल पहले स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरा लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर इंजर्ड हो गई थी, उसमें उन्होंने तार डाला था और वो हेयर केस क्रैश था ऐसा। तो उसमें अभी मेरे को 10 साल के बाद में उसमें खुजली टाइप की आती है ऐसी, और खुजाओ ना तो ऐसा लाल सा हो जाता है, वो कलर गुलाबी गुलाबी लाल कलर का हो जाती है उंगली। तो उसके लिए कोई मलहम क्या ऐसा कुछ लगा सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं हम लोग? ડોક્ટર સાહેબ આપનો માઇક બંધ છે, તમે પ્લીઝ અનમ્યુટ થાઓ ત્યાંથી. आप अनम्यूट हो जाइए डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं। मैंने अनम्यूट किया है, लेकिन हाँ, आपकी हाँ, तरफ से भी ये बीच में आवाज चली गई थी। अच्छा, तो मैं आपकी पूरी बात मैं सुन नहीं पाया हूँ। अच्छा, मेरे को आपकी आवाज अच्छी आ रही है। देखिए आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आवाज आ रही है, लेकिन बीच में चला गया था पूरा। मैं रिपीट करता हूँ। हाँ, 10 साल पहले स्कूटर से एक्सीडेंट होने की वजह से 2 फिंगर में हेयर के क्रैश आ गया था। तो डॉक्टर ने उसमें तार डाल के उसको जोड़ा था। हाँ, और उसके बाद वो निकाल लिया। लेकिन अभी जैसे ठंडी हुआ या बरसात हुई तो उसमें खुजली आती है, और जब मैं खुजाता हूँ ना तो ऐसा गुलाबी कलर हो जाता है वो। तो उसके लिए कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन या कोई मलहम क्या? फिर मैं इनको डॉक्टर को ही बताऊँ वापस इनको? एक्चुअली आप प्रॉपरली कंसल्टेशन करवाना चाहते हो तो आप मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा समझ के इलाज किया जाए ना तो उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा आपको। अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, तो फिर आपने जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उसी को मैं बताऊँ क्या आपके पास में कंसल्ट करूँ? नहीं आप मेरे पास भी आ सकते हो, क्योंकि ऑपरेट किया वो डॉक्टरों का तो जो होना था उन्होंने कर दिया, उनसे जो होता था वो। अब ये स्किन के एलर्जी हो गई आपको। ओके ओके, चलेगा, ठीक। हाँ, ओके, मैं आपसे संपर्क करूंगा फिर बाद में। मैं इनसे या प्रीतिबेन से एड्रेस वगैरह सब ले लूंगा।
या थैंक यू दिलीप भाई। अभी Welcome. है आशाबेन शाह। आशाबेन आप वहां से अनम्यूट हो जाएंगे। बोलिए आशा बहन, बोलिए। आशाबेन हाँ। अनम्यूट हो जाइए। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मेरे जी। सन, हाँ नमस्ते जी। मेरे सन को है ना कोरोना हुआ था। 15 दिन के बाद उसको 1 महीने के बाद उसको बहुत खुजली आ रही है। तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर से पूछा, उन्होंने एलिग्रा दिया, तो उससे थोड़ा अच्छा होता है, वापस चालू हो जाता है। और दूसरा एक उसका ही मेरे सन का है कि उसकी डॉग हमेशा रह जाती है और बहुत पेन होता है। वो भी एलोपैथी लेके सप्रेस होता है, पर अभी बहुत ज्यादा हो गया है, उसको अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ और मेरा बेटा हाँ। रहता है यूएस में, अभी मैं यूएस में हूँ। हाँ। तो इसका हाँ। इलाज बता सकते हैं, और हो सके तो आपका फोन नंबर भी दे देना। थैंक यू सर। हाँ, अब मेरा फोन नंबर लिख सकते हो। 983330। डॉक्टर साहब मेरे पास अभी बॉल पेन नहीं है, मैं बाद में ले लेती हूँ। मैं पहले आपको आपका आंसर सुन लेती हूँ। 9833012489। फिर से ओके बोलता हूँ 9833012489। ओके। और जहाँ तक आपने बोला, तो आपके बेटे को इंटरनल दूसरे भी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है वो कोरोना के बाद भी हुआ हो। और जो उनको पेन हो रहा है नेक वगैरह में, वो पहले से था कि बाद में हुआ है? नहीं, पहले से कोरोना। मीन्स थोड़ा होता है, फिर अच्छा हो जाता है। हाँ फिर कुछ हाँ हाँ फिजियोथेरेपी कराता है, फिर अच्छा हो हाँ जाता हाँ, है, समझा। वापस चालू हो जाता है। यस कभी भी डॉक रह जाती हाँ है, हाँ। अभी भी उसको यस ये यस। प्रॉब्लम चालू है यहाँ। हाँ हाँ, तो उनको हमेशा का परमानेंटली ठीक हो सकता है। हाँ, तो उसका कॉज तो मैंने कुछ तो आपको अभी आज के लेक्चर में बताया है। तो वो अलग अलग प्रकार के कॉज होते हैं। तो मेरी कई कई पेशेंट यूएसए में भी है, यूके में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है। तो हाँ, तो वो लोग मेरे साथ टेलीफोनिक कंसल्टेशन करवाते हैं, और फिर मैं अकॉर्डिंगली दवाइयाँ भेज देता हूँ। तो 4 दिन में पहुंच जाते हैं वहाँ पर। Within 4 ओके days you can receive the medicine. Yes. ओके। तो उसका अच्छा हो जाएगा बाद में, क्योंकि ये परमानेंट हाँ, जैसा होना लग रहा है चाहिए। मुझे। क्रोनिक हो गया है उसको अभी, पहले तो अच्छा हो हाँ जाता था, अभी क्रोनिक है, बार बार हो रहा है। हाँ, ऐसे ही लोग तो आते हैं मेरे तो पास। एमआरआई वगैरह करने की जरूरत है क्या डॉक्टर साहब उसको? नहीं 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 नहीं, एमआरआई में भी कुछ नहीं मिलेगा। ओके। एमआरआई में भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तो मेरे पास आते हैं लोग, बड़ी बड़ी फाइल लेके आते हैं। यहाँ से वीडियो कंसल्टिंग कर सकते हैं क्या यूएस से? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं हम लोग। तो प्री शेड्यूल टाइम पे हम लोग निश्चित कर सकते हैं कि इस समय पे हम वीडियो कॉलिंग करें, तो उस समय हाँ, पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो सैटरडे को अवेलेबल रहते हैं आप? हाँ, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। ओके, और ये टाइम पे चलेगा? तो उसका भी हाँ यही हाँ नंबर है क्या? हाँ, यही नंबर है, मैंने अभी जो बोला वही नंबर है। हाँ ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं उसको हाँ, बोलती हूँ आपसे बात कर ले। થેન્ક યુ हाँ આશાબેન। હવે નેક્સ્ટ છે। હા હા બોલો આશાબેન। પ્રીતિબેન, પછી છે ને તમે સ્ક્રીન પર જરાક ચાર્ટ પર લખજો ને નંબર, કારણ કે મારી પાસે બોલપેન નહોતી તો મેં લખ્યો નહોતો. હું ચેટ બોક્સમાં નાખી દઉં છું। ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે आप થેન્ક યુ। प्रीतिबेन, હા બોલો બોલીએ। અમારી વેબસાઇટ પણ છે, તો એ પણ તમે ચેટ બોક્સમાં નાખી દેજો। પણ તમારી હા વેબસાઇટ તમારે જ નાખવી પડશે, મારી પાસે નથી તમારી વેબસાઇટ। હા, ચેટ એ હું બોક્સમાં અત્યારે કહું। હા બોલો। હા www.goldmedalistinayurveda.info। ફરીથી બોલું છું, www.goldmedalistinayurveda.info। આયુર્વેદા .info info INF info હા ઇન્ફો। info yes। ઓકે, ફોન નંબર હા, નાખી તો દઉં છું એટલે એ લોકો તમને કોન્ટેક્ટ કરી શકશે। હા અને આ હા બી હા નાખતા ઠીક છે। હવે નેક્સ્ટ છે ચારુબેન હા ભોજાણી। હા। ચારુબેન તમે મારા ત્યાંથી અનમ્યુટ થજો પ્લીઝ। નમસ્તે ચારુબેન। તમારું નમસ્તે। અનમ્યુટ થાવ ચારુબેન, મેં રિક્વેસ્ટ મોકલાવી છે। હવે આવ્યો? હા થઈ ગયા। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ, सर नमस्ते मेरा चारुबेन।
हाँ, मेरा एक आज से 15 साल पहले एक आर्टरी में स्टेन बिठाया था। फिर दूसरे आर्टरी में जो था ना, तभी बाईपास करने का इतना जरूरत नहीं था। और अब दूसरी आर्टरी एकदम नैरो थी तो ऐसा ही रहने दिया। वो बोलते थे कि उसमें स्टेन नहीं बैठ सकती है। लेकिन अब भी 15 साल के बाद क्या है, मैं कंटिन्यू डॉक्टर फॉलो में हूँ हार्ट स्पेशलिस्ट के। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कभी कभी चलती हूँ ना तो पीछे पीठ में बहुत दर्द करने लगता है। ऐसा नहीं करता है, तो उसकी वजह हो सकती है। एक्चुअली वजह इसमें पीठ में दर्द होने के कई कारण होते हैं। तो उसमें कभी कभी हार्ट में जब इफेक्ट होती है तब भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर तो आपको जो मैंने बोला फर्मेंटेशन यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, वो होने की संभावना ज्यादा है। तो इसके लिए आप यदि आप कहाँ रहते हो, मुंबई में के बाहर? मैं बम्बई में ही हूँ। हाँ, तो आप चाहो तो मेरा अपॉइंटमेंट लेके आओगे ना? फोन करके मिलती हूँ आपको सर। हाँ जी, हाँ, यू आर वेरी मच वेलकम एंड यू कैन बी आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। यस। हाँ जी, मैं अर्जुन छाल का पाउडर और सब लेती थी। हाँ हाँ मुझे किसी ने सलाह दी थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, जो रिलेशन में है। हाँ हाँ, नहीं तो अभी अच्छा, वो हार्ट के लिए अच्छा है अर्जुन छाल, लेकिन ये हो सकता है कि हार्ट की वजह से न भी हो। तो आप पर्सनली आओगे ना तो मैं प्रॉपर कंसल्टिंग वगैरह करूंगा ना, तो आपका मालूम पड़ेगा कि ओके एग्जैक्टली व्हाट इज द रियल कॉज। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम चारुबेन। मैम। हाँ, अभी नेक्स्ट है मृदुलाबेन भट्ट। मृदुलाबेन भट्ट, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ जी हाँ, मળી થેન્ક યુ। या અચ્છા, નમસ્તે પ્રકાશભાઈ। સોરાયસિસ નમસ્તે जी। શેનાથી થાય છે અને એના માટેનો શું ટ્રીટમેન્ટ છે? हाँ जी। सोरायसिस किसके लिए कैसे होता है हाँ और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, वो आप बताएंगे जरा? हाँ, एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोरियासिस होने के मुख्य कारणों में से वो कफज व्याधि माना जाता है। तो कफज का मतलब सिर्फ कफ ऐसा नहीं है, लेकिन कफ जैसा जो म्यूकस पैदा होता है वेस्ट मैटर बन के, तो वो हमारे ब्लड में धीरे धीरे करके सेटल हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब चिकनाहट वाली होती है ब्लड में, तो वो खुजली करती है, और खुजली करने से वो धीरे धीरे करके वहाँ पर सेप्टिक होता है, और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर से ब्लड भी निकलता है, कभी कभी पस भी निकलता है। तो मेरे पास दुबई से एक लड़का आया था जिसको जन्म से सोरियासिस था। तो उसको एक्चुअली तो जेनेटिक था, तो वो तो पूरी बॉडी में फैल गया था और पूरी बॉडी में से पस आ रहा था उसको। तो वो तो अमेरिका, यूके वगैरह, पेरिस वगैरह सब जगह जाके आया था। तो वहाँ के डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे। तो फिर किसी ने मेरा रेफरेंस दिया, तब जाके मेरे पास आए, और वो फिर कंप्लीटली परमानेंटली मैंने उनको ठीक कर दिया था। तो आप भी चाहो ना तो आप पर्सनली एक बार आ सकते हो। आप बम्बई में शायद आपका कहाँ पर है? आपका डिस्पेंसरी कहाँ पर है बम्बई में? गोरेगांव वेस्ट। गोरेगांव। अच्छा, हाँ जी। गोरेगांव और वेस्ट। आप यदि आप न्यू मुंबई में हो ना? नहीं, मुलुंड में। मुलुंड में? हाँ, तो मुलुंड में। आपको फिर एक बार आओ, फिर बाद में मैं कुरियर भी कर सकता हूँ दवाइयाँ। अच्छा हाँ, वो होता है आजकल, मेरे कुरियर जाते हैं हर जगह पे। अच्छा। और ये हाँ, नी पेन के लिए क्या करने का? गौठन दुखता है तो? हाँ, वो सब मैं एक साथ में ठीक कर दूंगा आपका, डोंट वरी। अच्छा, ये सब मिट जाएगा? एक साथ में सब ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट लेके हम लोग आएंगे। थैंक यू भाई। वेलकम थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू मृदुलाबेन। अभी थैंक यू। नेक्स्ट है હર્ષદાબેન શાહ। એમ તમને અનમ્યુટ ની રિક્વેસ્ટ મોકલાવી છે। नमस्ते हर्षदाबेन। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। हाँ क्यारे क्यारे कभी कभी बगासा आते, बहुत उसके लिए क्या करने का? अच्छा, बगासा। हाँ बगासा हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, समझिए, बट बगासा बराबर है। तो आपको क्या आप नींद कितनी लेते हो, कितने घंटे की नींद आती है? रात को 11 बजे सोते हैं तो सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं। हाँ, तो ये तो बराबर है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आपको श्रम कितना पड़ता है, मतलब फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल काम कितना करते हो आप? क्या बोलते हैं? मतलब कि आप
आपको मतलब मेहनत कितनी करनी पड़ती है दिन भर में? समझ में नहीं आया क्या તમારો समझ આખા દિવસનો ફિઝિકલ કામ કેટલું હોય છે? બહુ હોય છે એમ? સ્ટ્રેસ ના, વાળું ના, હોય એટલું છે કામ એમ? इतना ज्यादा नहीं रहता है, इतना ज्यादा काम नहीं रहता, फ्री भी रहती हूँ। अच्छा, हाँ, तो फिर कभी आपका कभी पॉजिटिव ऐसे करते बहुत बगास आते हैं बहुत। हाँ, तो फिर वो एक आपका समझना कि समान वायु और उदान वायु एग्रेवेटेड है, ज्यादा हो गया, प्रकोपक है वो, तो उसके लिए क्या समान करना? वायु उदान वायु। हाँ, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक चिकित्सा करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब जाके ये वायु जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे उसका शमन होगा ना, तो वो भी निकल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी आए मेरे पास के जिनको बैठे बैठे नींद आ जाती है। एक लेडीज ऐसी आई थी कि बोलती है मैं आटा पकाते मतलब आटा गूंथते गूंथते सो जाती हूँ। और कभी कभी एक लेडीज ऐसा भी बोला था कि वो रोटी सेकते सेकते आंखें बंद हो जाती है उसकी। तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के वायुओं का ही मुख्य कारण होता है, और वायु पनपने का मुख्य कारण इन्फेक्शन होता है। तो ये समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली ड्यू टू व्हाट कॉज, किस कारण से ये सब हुआ है। तो अकॉर्डिंगली जब हम चिकित्सा करते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसे कोई घरगथ्थू उपचार नहीं है कुछ? घरगथ्थू में तो अभी कैसे जानकारी मिलेगी कि आपका क्या कारण एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी नींद बराबर है, सफिशिएंट है, आपको ज्यादा फिजिकल स्ट्रेन भी नहीं है, नहीं है। तो अभी हाँ, तो एक्चुअल कारण समझना पड़ेगा ना अभी। ठीक है, कंसल्ट करेंगे आपको। हाँ जी, यस, Thank यू आर you. वेलकम। Thank you, Harshadaben. Now Thank next you. is Dheerajben. ધીરજબેન, ધીરજબેન ને અનમ્યુટ કરવાની રિક્વેસ્ટ મોકલાવી છે. ધીરજબેન નમસ્કાર. અનમ્યુટ થાઓ. હા થઈ ગયું. આવ્યો અવાજ? હા, આવે છે. હા, આવે છે અવાજ, બોલો. નમસ્તે ડોક્ટર સાહેબ. હા, નમસ્તે જી, બોલો. હું મુલુંડમાં રહું છું અને મને છે ને હાર્ટમાં પ્રોબ્લેમ છે, એટલે હું 4-5 વર્ષ પહેલા એન્જિયોગ્રાફી કરાવી હતી, ત્યારે મને એક નસમાં બ્લોકેજ આવ્યું હતું. હા, અને એના પછી હવે મને સ્ટેન બેસાડવાનું કીધું હતું, પણ મેં ના પાડી. મેં કીધું એક જ નસમાં છે તો પછી વિચારીને કેશું, પણ દવા લખી આપી હતી. તો એનાથી 3 મહિના ખાધું તો સારું લાગતું હતું, પછી વળી દવા બંધ કરું ને તો ફરી પાછો દુખાવો ઉપડી આવે. અને પછી આયુર્વેદિક નું તમે અર્જુનના રીસની છાલ ને એ બધું કહો છો ને, એનો કાળો પીવું છું, અર્જુનના રીસ અને તજ. બરાબર. ગુજરાતીમાં સમજાય છે? હા, બરાબર છે, એ બંને સારા છે, તમે ચાલુ રાખી શકો છો. કાયમ ચાલુ રાખીએ તો કઈ વાંધો નથી ને? એટલે હવે તમારી પ્રકૃતિ પ્રમાણે છે, જો તમને ગરમ ના પડે ને તો તમે ચાલુ રાખી શકો છો. ઓકે ઓકે. યસ. અને બીજું જ્યારે અઠવાડિયા બંધ કરી નાખું 8-10 દિવસ અને ચાલવા જાઉં ને, વોક કરવા, તો 1 જ કિલોમીટર ચાલું તો વળી મને થોડું ઉભું રહેવું પડે, પછી શ્વાસ ચડે એવી રીતે. હા, તો બ્લોકેજ હશે હજુ પણ. આયુર્વેદમાં છે, બ્લોક ને દૂર કરવાના ઇલાજો છે. તો મારી વેબસાઇટ ઉપર એક પેશન્ટના મતલબ ટેસ્ટિમોનિયલ નું પેજ છે આખું, એમાં ઘણા બધા પેશન્ટ પોતાના ફોટા અને અભિપ્રાય આપ્યા છે. તો એમાં એક વ્યક્તિને કેલ્શિયમ પણ ડિપોઝિટ થયેલું હતું કોરોનરી આર્ટરીમાં. અને બીજી એક વાત, હું છે ને જયારે ઉપવાસ કરું ને અને કાઈ ના ખાઉં ને ત્યારે મને એટલું બધું દુખતું નથી, પણ જયારે ખાઈને હું બહાર નીકળું ને તો મને દુખાવો ઉપડે. એટલે રાઈટ સાઈડ માં દુખે છે મને, રાઈટ સાઈડ માં. હા, તો તમને ગેસ પણ હોઈ શકે છે ને? હા, એટલે લાગે સાથે જ લાગે છે ગેસ ને બધું. હા, તો તમારી ઈચ્છા હોય તો એકવાર આવો મારી પાસે, તો પછી ચેકઅપ વગેરે કરશું ને તો તમને પણ કન્ફર્મ થઈ જશે કે તમને ખરેખર ગેસ છે કે નહીં. બરાબર. અકોર્ડિંગલી તમારી દવા થશે પછી. ઓકે ઓકે, ઠીક છે, ભલે ભલે. હવે એક છે મીનાક્ષીબેન ચોકસી. મીનાક્ષીબેન ચોકસી, તમે અનમ્યુટ થાઓ ત્યાંથી. તમે પહેલા અનમ્યુટ થઈ ગઈ. હા, તો મને છે ને જોશીભાઈ, મને છે ને એ પ્રોબ્લેમ છે કે મને છે ને હેરફોલ બહુ થાય છે, અને મને છે ને થાઇરોઇડ નો પ્રોબ્લેમ છે. થાઇરોઇડ છે, એને લીધે હેરફોલ ખૂબ જ થાય છે અને માથામાં ખૂબ ખંજોળ આવે છે, खुजली बहुत आती है। और मेरी एज 66 ईयर्स है। हाँ हाँ, तो एक्चुअली थायराइड की तो आप दवाई लेते होंगे? हाँ, मैं लेती हूँ।
हाँ तो एलोपैथी वो लेती कितने हूँ। कितने समय से ले रहे हो आप? 2-3 साल से लेती हूँ। हाँ 2-3 साल से ले रहे हो ना, तो बीच बीच में चेकअप करवाते हो क्या थायराइड का? हाँ, TSH? लेकिन इतना कुछ कम नहीं होता है, अच्छा कंट्रोल में रहता अच्छा। है लेकिन कम नहीं होता है। ओहो, तो फिर आयुर्वेद में भी है उसका इलाज, थायराइड का भी इलाज है। और साथ में आपको जो खुजली आती है उसका मतलब ये भी हुआ कि आपको स्काल्प इन्फेक्शन, यानी कि सिर में जो हेयर फॉलिकल है उसके रूट में इन्फेक्शन भी है, तो उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। और अभी भी दिख रहा है कि आपके काफी बाल झड़ गए हैं। हाँ तो आपको फिर आपके अनुकूल जो भी दवाइयाँ होगी वो, और आपके अनुकूल जो तेल होते हैं वो मैं कंबाइन करके दूंगा, तो वो दूर हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। हाँ, मैं ऑयल तो रेगुलरली डालती हूँ, क्योंकि नहीं डालती हूँ ना तो मुझे बहुत खुजली आती है। हाँ लेकिन वो फिर भी आपको परमानेंट फायदा ही नहीं हो रहा है ना अभी तक। नहीं हो रहा है। हाँ तो मैंने यही बोला ना अभी लेक्चर में कि मार्केट में अवेलेबल सारे ऑयल लगा लगा के भी लोग आते हैं, तो जब तक क्या ओरल मेडिसिन से इम्प्योरिटीज दूर नहीं करते हैं या इन्फेक्शन दूर नहीं करते हैं, तब तक तो वो बार बार होता है। और अभी क्या ना, मुझे एलोपैथी में भी विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि 2-3 साल एक ही मेडिसिन आप लेते हो और कोई भी फर्क नहीं पड़ता है या कम नहीं होता है, तो उसका फायदा ही क्या है? बराबर है, कंट्रोल में करेक्ट रहता करेक्ट। है लेकिन कम नहीं होता है, हाँ तो फायदा क्या है उसका? हाँ वो तो सही बात है ना, वो सही बात है एग्जैक्टली। मेरे पास मैक्सिमम केसेस आप जैसे ही होते हैं, इनफैक्ट तो मुझे सब ना तीनों आपका पेशेंट जैसे गोरेगांव आते हैं। वेस्ट का एड्रेस बताइए, क्योंकि मैं सांता क्रूज में रहती हूँ, तो मैं हाँ हाँ, गोरेगांव आ सकती हूँ। अब मेरा फोन नंबर अभी इस पे आया है, आप हाँ, चैट बॉक्स में देख लीजिएगा, तो फोन ठीक करके है, आओगे तो मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा फोन में। ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है, और मेरे को चलते वक्त ना थोड़ी हाफ चढ़ती है, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी उसका ऐसा ब्रीदिंग होता डिफरेंशियल, है। हाँ इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है कि गैस ट्रबल है कि और कुछ है, और ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी मैं करता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली दवाई देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम थैंक यू वेलकम। मीनाक्षी बेन। ना अभी Okay. लास्ट है भरत भाई जीमोलिया। भरत भाई। थैंक यू प्रकाश भाई, भरत भाई बहुत प्रणाम। बढ़िया, नमस्ते। बहुत बढ़िया जानकारी दी। वैसे ये वीक में आपका अपॉइंटमेंट तो लेना ही है। पूछना एक था, मेरी वाइफ का भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो उन्हें पैर में सूजन हुई है, और ये अपना क्या इचिंग इचिंग बहुत होती है, खुजली, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ तो ये मैंने बोला कि आपके बारे में भी, मतलब आपकी वाइफ को भी आप लेके आइएगा, नहीं, तो वो मैं तो उनको ऑस्ट्रेलिया में है, टोटली मैं आ जाऊंगा। हाँ कम्प्लीटली ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ पर है अभी? अभी ऑस्ट्रेलिया में है वो। ऑस्ट्रेलिया में। तो ठीक है ना, आप दवाई लेके कुरियर कर दीजिएगा, हो जाएगा, मेरे से फोन पे बात करवा दीजिए उनकी। वो अभी कोपरेल तेल या उससे कुछ फर्क पड़ सकता है ऐसा? वो टेम्पररी फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली उनको मेटाबॉलिज्म खराब हो गया उनका, मतलब हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में इंडाइजेशन ज्यादा है उनको। हाँ हाँ, तो वो पूरा ठीक होगा ना तो ही ये ठीक होगा, क्योंकि ये फर्मेंटेड गैसेज है ये, वैसे हर फूड इज गेटिंग फर्मेंटेड। ऑस्टोपोरोसिस भी है। हाँ वो भी होता है ना, जैसे कोई भी बार बार ये कोई भी डिजीज होता है, मतलब कि इन्फेक्शन होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो डेफिशिएंसी आएगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, और भी कई चीजें होती है। ये मैं मेरे कई पेशेंटों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ इस तरह से। तो दूसरा एक आपसे बात करनी थी कि कई लोग वज्रेश्वरी में जाते हैं, जहाँ वो गंधक वाला पानी जो सूर्य कुंड और सब है, वहां से हाँ बोलते हैं स्किन डिजीज अच्छी हो जाती है, ऐसा कुछ आपका क्या राय है? अभी गंधक वाले पानी में वही लोग ठीक होते हैं कि जिनको वात कफज होता है। अभी ज्यादातर लोगों को है ना पित्तज है। हाँ ये पित्तज होगा ना तो वहां जाने के बाद डबल भी हो सकता है, ये भी होता है अभी, ओहो, क्योंकि गंधक इज वेरी वेरी हॉट इन नेचर, हम्म, सल्फर इज वेरी वेरी हॉट इन नेचर। हम्म। तो हाफ नॉलेज इज द वर्स्ट नॉलेज। तो वो स्किन के लिए गंधक की गोलियां आती है, वो ले सकते हैं स्किन ऐसे इस डिजीज? तरह से आप यदि लोगे, और मान लो कि आपको पित्त प्रकृति है आपके यहाँ, जिनकी भी है वाइफ की, तो हाँ हाँ, उनको गर्म पड़ेगी तो ऊपर से कोलाइटिस भी हो सकता है। या वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कंसर्निंग इवन आयुर्वेदा, क्योंकि मेरे पास लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेकर आते हैं,
तो उनको प्रकृति के अनुकूल या उनका पूरा हिस्ट्री लेने के बाद परफेक्टली दवा देने वाले बहुत कम है, तो इसलिए उनको आना पड़ता है मेरे पास भी। तो ये सब पूरा कंसल्टिंग के बाद में जानकारी लेके बैलेंस्ड मेडिसिन देता हूँ। बैलेंस मेडिसिन देने से ही आदमी ठीक हो सकता है। आप जीप देख के वो बता सकते हो कौन सी बीमारी है किसको? हाँ, मैं पहले के जमाने में तो लोग समझते सिर्फ नाड़ी चेक करो तो ही मालूम पड़ता है, लेकिन मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है तब से टंग डायग्नोसिस डेवलप किया। आई हैव डन लॉट ऑफ R&D इन टंग डायग्नोसिस। तो मेरे जो दूर के पेशेंट है, फॉरेन के भी पेशेंट है, तो उनको मैं टंग का पिक्चर मंगवाता हूँ, टंग का पिक्चर, जबान का। तो उससे मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है। कई बार पेशेंटों को भी जो नहीं मालूम होता है वो मैं बताता हूँ, तब जाके वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके। और आपका जो क्लिनिक है वो मंडे टू संडे 7 दिन है, कैसे है? मंडे टू सैटरडे और संडे को आफ्टरनून तक है। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। कॉल करता हूँ आपको। थैंक यू। वेलकम। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है डॉक्टर साहब। अभी आप भी एक मिनट। हाँ, सो अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने जो आज जानकारी दी है गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने सबका सॉल्यूशन की जो बात की, सबका जो प्रॉब्लम था उसके बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं। और वो लोग आपको कंसल्ट करेंगे। हम लोगों ने चैट बॉक्स में आपकी वेबसाइट और आपका फोन नंबर भी रख दिया है, तो वो आपको कंसल्ट भी करेंगे। अभी मैं सभी को 1 मिनट के लिए अनम्यूट करती हूँ और किसी को वॉट ऑफ थैंक्स हाँ सभी को अनम्यूट किया है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय जो आपने हमें दिया है, उसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच। जय हो, मंगलमय हो। सेशन एंड करने की परमिशन मांग रही हूँ प्रकाश भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कॉल करें ना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू, उमेश भाई ने थैंक यू, भरत भाई ने थैंक यू, बधाने थैंक यू। नहीं आवे।